Hello and welcome to Sriman Narayan channel. My dear students, in this video lecture, I am going to discuss to you people about the electric potential energy of charged bodies under the influence of external electric field. आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम तुम लोगों को किसी चार्ज बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन हमारा ये कंडीशन है कि वह जो चार्ज बॉडी से बना हुआ कॉन्फ़िगरेशन होगा वह किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा. So before starting this new concept before you, as already I have discussed to you in my previous video lecture, that if there be 2-point charges Q1 and Q2 which are isolated through a certain distance r apart, and if there is no any external electric field, then in that very situation the electric potential energy of the system consisted of these 2-point charges Q1 and Q2. It is simply given as U equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R, where the nature of charges, I mean to say that while solving the numerical problems based on this formula, you must keep the fact in mind that the Q1 and Q2, the values of Q1 and Q2 will be placed in the formula with their proper sign. So before starting this new concept, I want to discuss to you people about the electric potential energy of 3-point charges Q1, Q2 and Q3 which are located in a region of space where there is no external electric field. Just now try to see. Let there be 3-point charges, and these 3-point charges, this point is A, this point is B, this point is C. At this point the charge Q1 is located. At point B the charge Q2 is located. At the point C the charge Q3 is located. Now join all these 3 charges so that the 3-point charges make an arrangement, and it is a triangle. Suppose one asks a question to you people, calculate the electric potential energy of this configuration which is consisted of 3-point charges Q1, Q2 and Q3. Just imagine the distance between Q1 and Q2, let it is R12. Similarly, distance between Q2 and Q3, let it is R23. And the distance between Q1 and Q3, let it is R13. So how will you calculate? As I am telling you again and again to you people that when we make this configuration of the charge, there is no external electric field. So all the charges are brought from infinity. So when the first charge Q1, suppose initially Q1 is brought from infinity to this point A, no work will be done. But when the charge Q2 will be brought from infinity to the point B, in this situation work will be done, and already there will exist an electric field due to charge Q1. Similarly, if the charge Q3 is brought from infinity to the point C, so in that very situation we have got 2 more charges Q1 and Q2, and due to
electric field produced by these two charges, some work will be done. So if question is asked to you to find the electric potential energy, or the question may be asked that how much work will be done in making this configuration, in a very simple way, firstly you try to choose the pairs of charges. अर्थात ऐसे जहां प्रॉब्लम आए वहां सबसे पहले तुमको चार्जेज का पेयर बनाना है। तो यहाँ पर देखने में स्पष्ट है कि अगर हम पेयर के रूप में चार्ज लेते हैं तो एक पेयर Q1 Q2 का, दूसरा पेयर Q2 Q3 का, तीसरा पेयर Q1 और Q3 का, यही तीन पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम अगर इस Q1 और Q2 के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो सीधी सी बात है U1 U12 और ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा भाई Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12। उसी तरह से अगर हम Q2 और Q3 के लिए निकालें तो U23 और ये वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R23। और उसी तरह से जो तीसरा पेयर Q1 और Q3 बनता है इसके लिए हम U13 निकाल दें और ये भी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R13। अब अगर हम टोटल इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो यह जो वैल्यू होगा U, सो U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ध्यान दो, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन का ये जो हुआ सबको जोड़ दिया जाए, U12 प्लस U23 प्लस U13, और ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो कुछ मिलेगा वही वर्क डन होगा अथवा पूरी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब थोड़ा कल्पना करो, 4 पॉइंट चार्जेज हैं और ये जो 4 पॉइंट चार्जेज हैं इस तरह से एक स्क्वायर के रूप में अरेंज्ड हैं। मान लो ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के जो 4 वर्टिसेज हैं A, B, C और D, इन पर एक चार्ज है Q1, ये चार्ज जो है यहाँ Q2, यहाँ चार्ज है Q3 और यहाँ जो चार्ज है Q4 है। और ये प्रत्येक साइड इसका A है, क्योंकि ये स्क्वायर है और हर साइड की लेंथ A होगी। और कहा जाए कि इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए वर्क डन निकालिए या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, बड़ी ही आसानी से ये काम तुमको करना होगा। और इसके लिए हर डिफरेंट चार्जेज को लेकर और हम पेयर बनाएंगे। जैसे पहला Q1 और Q2 लेंगे, फिर Q2 Q3 लेंगे, फिर Q3 Q4 लेंगे, ये 4 पेयर आसानी से बन जाएंगे, पॉसिबल पेयर्स ऑफ चार्जेज। और इस तरह से वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई A, इसके लिए भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई A। अगर इन दोनों चार्जेस के लिए लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 इंटू Q4 डिवाइडेड बाई A। इन दोनों चार्ज के लिए वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q4 डिवाइडेड बाई A। ये 4 पेयर ऑफ चार्जेस तो बन गए। अब हम दूसरे अन्य पॉसिबल चार्ज पेयर की भी बात करें। एक ये Q4 है और ये Q2 है, दोनों आमने सामने हैं, ये भी एक पेयर ऑफ चार्ज का निर्माण करते हैं। उसी तरह से ये Q1 और Q3 ये भी एक पेयर ऑफ चार्ज का निर्माण करेंगे। तो फिर हम Q2 और Q4 इन दोनों चार्जेस के लिए हम लोग निकालेंगे। उसी तरह से पुनः Q1 और Q3 के लिए निकालेंगे और सबको हम लोग ऐड कर देंगे। उसी तरह से मान लो हेक्सागोन दिया हो और
उसके वर्टिसेज पर बहुत सारे ये पॉइंट चार्जेस जो हैं 6 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड हो, कहा जाए कि कितना वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ चार्जेस को बनाना है और उनके लिए ये फार्मूला अप्लाई करके और सबको जोड़ देना है। इस तरह से टोटल वर्क डन, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ we now want to discuss to you people about the topic electric potential energy in an external electric field। अभी तक जो भी बात हुई उसमें तुम लोग देखें कि जो चार्ज बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन बनता है वहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन अब हम उस सिचुएशन की बात करना चाहते हैं जिसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और वहां पर 2, 3, 4, 5 चार्जेस को लेकर के और कोई अरेंजमेंट हम बनाएं और उस स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए कैसे इस काम को किया जाएगा, यही चीज हम तुम लोगों को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करें। मान लिया जाए कि एक 2D प्लेन है, तुम देख सकते हो हमने यहाँ पर ओ ओरिजिन लिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक पॉइंट P है इस तरह से कि इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है। अब कल्पना करो कि इंफिनिटी से कोई एक टेस्ट चार्ज Q0 जो है इसको उठा करके लाया जाता है और यहां पर प्लेस किया जाता है, और इतनी ही नहीं, यह जो टेस्ट चार्ज Q0 लाया गया इस पॉइंट P पर, तो ऑलरेडी यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मान लिया जाए कि कोई सोर्स चार्ज है और उस सोर्स चार्ज के चलते इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू कैपिटल E न्यूटन पर कूलम है। स्वाभाविक सी बात है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पॉइंट P पर एक निश्चित वैल्यू की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करेगी। मान लिया जाए इस पॉइंट पर जो सोर्स चार्ज है या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चलते जो पोटेंशियल यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको यदि हम VR से डिनोट करें तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टेज चार्ज Q0 को इस पॉइंट P पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वह वर्क कितना होगा भाई? वह वर्क W is equal to VR means potential at the point P and trace charge Q0 इतने के बराबर होगा। और यह जो वर्क हुआ यही वर्क इस ट्रेस चार्ज Q0 में एनर्जी के रूप में स्टोर कर जाएगा, और इस तरह से इस ट्रेस चार्ज Q0 जो है या चार्ज Q0 कहें, इस चार्ज Q0 के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वह वैल्यू VR इंटू Q0 के बराबर होगा। अब हम थोड़ा सा 2 पॉइंट चार्जेस की बात करना चाहते हैं। मान लो, जस्ट इमेजिन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ 2D प्लेन, दिस इज x axis, this is y axis, and in this 2D plane let there be a point P for which the position vector is r1, and there exists another point Q for which the position vector is r2. Now from infinity a point charge Q1 is brought at the point P. Similarly,
and another point charge Q2 is brought from infinity, and the distance between these 2 point charges PQ, let it is R12. Remember here, already there exists a certain value of electric field in this 2D region. यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि इस 2D रीजन में पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 को इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में टोटल जो वर्क होगा वह वर्क कितना होगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, यही चीज हम निकालना चाहते हैं। मान लो जो सोर्स चार्ज है या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है, उसके चलते इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम लोग Vp मान लिया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर इस चार्ज Q1 को इंफिनिटी से इस पॉइंट P पर लाया जाए तो जो वर्क डन होगा उसको हम W1 से डिनोट करें, तो W1 बराबर हो जाएगा Vp इंटू चार्ज Q1। पुनः उस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पॉइंट Q पर मान लिया जाए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करता है उसकी वैल्यू को हम Vq मान लिया जाए। और यदि इस चार्ज Q2 को इस पॉइंट पर लाया जाए तो जो वर्क होगा वह वर्क W2 बराबर कितना होगा भाई, तो ये आपका पोटेंशियल Vq और इनटू चार्ज कितना है Q2, ये पॉइंट चार्ज है, ये वर्क हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, इनके द्वारा भी खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और ऐसी स्थिति में इन दोनों अरेंजमेंट को, इन दोनों चार्जों से मिल करके जो अरेंजमेंट होगा उसको फॉर्म करने में जो वर्क होगा उस वर्क को हम W3 से डिनोट करें, तो यह वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस R12। और तुम जानते हो ये दूरी तो निकाला जा सकता है, मॉड ऑफ R12, ये वेक्टर R12 जो होगा ये कितने को होगा, वेक्टर R2 माइनस R1 के बराबर होगा, और इसका मॉडुलस निकाल सकते हो, और इस तरह से ये वैल्यू आएगा। अब जब टोटल वर्क डन निकालना हो तो ऐसी स्थिति में इस W को हम लिखेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी तीनों वर्क को जोड़ देंगे और इस तरह से हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और ये बात अगर सिर्फ दो ही पॉइंट चार्जेस के लिए नहीं, अन्य पॉइंट चार्जेस भी हों तो उनके लिए भी बिल्कुल इसी तरह से ये टास्क को पूरा किया जा सकता है। ओके, थैंक्स।